मैं भावेश कुमार चौहान आपका पुनः स्वागत करता हूं। हमारा जो पिछली चर्चा इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर पे जारी थी उसी को हम जारी रखेंगे और आज जो मुख्यतः हमारा डिस्कशन होगा वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर्स पे होगा। यानी कि वोल्टमीटर्स के इलेक्ट्रॉनिक में भी कई तरीके के प्रकार हैं, द मैनी टाइप्स ऑफ वोल्टमीटर्स। सो वी विल बी डिस्कसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्टमीटर्स in brief and the relevant concept, how they really stand out from each other, कैसे वो एक दूसरे से भिन्न हैं, इसके बारे में हमारी चर्चा होगी। और उसमें हम मुख्यतः वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर और इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर यूजिंग रेक्टिफायर, जिसमें रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं एक्सक्लूसिवली, दैन ट्रू आरएमएस रीडिंग वोल्टमीटर, दैन डिफरेंशियल वोल्टमीटर, उसके बाद फिर वेक्टर वोल्टमीटर और अंत में हम करंट मेजरमेंट यूजिंग वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर का चर्चा करेंगे। So vacuum tube voltmeter, vacuum tuned or vacuum tube, basically this is vacuum tube voltmeter. So they are considered as a one of the most useful instrument for the measurement of AC or DC voltage in the past. तो अगर हम AC या DC voltage measurement की बात करें तो past में जो था वो vacuum tube voltmeter they were the used as a major part. Okay, so that is please do correct. They were used as this. So in the past they were the major choice. Now the discussion of the vacuum tube voltmeter is being considered here purely on account of their historical background. तो ये जो discussion हो रहा है क्योंकि आप फर्स्ट हिस्ट्री को इरेज नहीं कर सकते, उसके मायने बदल सकते हैं, ना मायने भी नहीं होती है, तो उसी हिसाब से अगर हम वोल्टमीटर के मेजरमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर्स वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर हैज़ बीन इन रन फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। और ग्रेजुअली उसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह फिर ट्रांजिस्टर्स के इन्वॉल्वमेंट हुए, बट इट इज़ नॉट एलिमिनेटेड इवन टिल डेट, दो इट्स यूज हैज़ रिड्यूस्ड। सो this also because the fact that VT VM are still being used in the laboratories, so that is why we are discussing this. Okay, so the practical vacuum tube voltmeters, which is abbreviated as VT VM circuits, they falls into the following categories. So in vacuum tube voltmeter also there are different categories. अगर broadly classify करें तो one is diode type, another is single triode type. Okay, so you are seeing here the vacuum tube voltmeter, कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, ये इसके अंदर कंपोनेंट्स रहते हैं। तो एक वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर, दिस इज यू आल्सो मस्ट बी सीइंग हियर इज अ वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर, हाउ दे लुक लाइक। सो दैट इज द पिक्चर्स टू गिव यू एन आइडिया वी हैव इंक्लूडेड। सो दैट इज आल्सो ए पिक्चर दैट टू गिव यू एन आइडिया हैज़ बीन इंक्लूडेड। सो वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर में अनदर टाइप्स बिसाइड दीज टू कैटेगरीज, दे लाइक डायोड type or single triode types. You have a balanced triode type also, then rectifier amplifier types also, and then amplifier rectifier types also. So there are like 5 major categories of the vacuum tube voltmeters which are available. And then in addition to the above, many other forms of vacuum tube voltmeters are also used. So in addition to these 5 categories, there are other categories also, but these are the major categories which have been listed here. And these includes the arrangement employing the slide back vacuum. तो slide back vacuum को इस्तेमाल करके भी कुछ और other additional categories हैं which are in use. And then vacuum tube meters and then vacuum tube voltmeters, they also use the logarithmic characteristics. तो ये logarithmic characteristic का भी इस्तेमाल करते हैं। तो you can say that it is almost a family in terms of electronic voltmeter, and there are various variants which are available in vacuum tube voltmeter. Now in these variations the frequency range, मतलब इसके अगर हम बात करें कि कुछ disadvantages भी हैं और वो दो major disadvantage हैं। पहला disadvantage frequency range के reference में है that the frequency range of this instrument, that is vacuum tube voltmeter, it extends well over the audio frequency range. ओके, वैसे तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज से भी बड़ी है, बट इसमें इशू आते हैं एट रेडियो फ्रीक्वेंसी। द वाल्व कैपेसिटेंस एंड द डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज रेजिस्टेंस, दे जो कि आर है, दे बेसिकली अपसेट द वोल्टेज डिवीज़न। तो अगर हम बात करें कि रेडियो फ्रीक्वेंसी में आके इसमें जो वोल्टेज डिवीज़न है, दे रियली गेट अपसेट, दे आर डिस्टर्बेंसेज दैट मेक द इंस्ट्रूमेंट्स यूजलेस। तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी में तो इट वर्क्स वेल, ओके, बट डिसएडवांटेज है कि अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो देन बिकॉज ऑफ द वाल्व कैपेसिटेंस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस पैरामीटर्स ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस, इट सफर्स एंड इट गिव्स यू इनएक्यूरेट रिजल्ट्स।
बिसाइड दैट रेस्पॉन्स टू द लो वोल्टेजेस, तो इसका लो वोल्टेज के लिए जो रेस्पॉन्स है दैट इज़ ऑल्सो नॉट प्रॉपर. बेसिकली द इंस्ट्रूमेंट इट गिव्स ए डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल टू द मीन वैल्यू, okay, mean value during the conducting half cycle, provided it is not used for voltage comparable with the voltage drop across the wall. तो ये मीन वैल्यू के रेफरेंस में आपको डिफ्लेक्शन देता है, लेकिन कंडक्टिंग हाफ साइकिल के लिए, और उसमें भी प्री कंडीशन है कि अगर वोल्टेज जो है वो कंपेरेबल है विद द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द वॉल जो है इंस्ट्रूमेंट का पार्ट. बट इंस्ट्रूमेंट दे हैज़ एन evenly divided scale, okay, evenly divided scale because of the linear characteristics for higher voltages. तो हायर वोल्टेजेस के लिए तो ये आपको इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड स्केल देता है. बट अगर नॉन लीनियरिटी की बात करें पर्टिकुलरली लोअर वोल्टेज लेवल में, देन इट हैज़ एन इशू, इट हैज़ एन मेजर इशूज, इट ऑलमोस्ट फेल बिकॉज उस लो वोल्टेज लेवल में क्या है, इसकी नॉन लीनियर करेक्टरिस्टिक्स हैं. तो नॉन लीनियर करेक्टरिस्टिक की वजह से ये आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगा. दैट विल शो ए एरर बिकॉज स्केल इज नॉट लीनियर. तो मीनिंग देयर बाय फॉर ए चेंज इन इनपुट इट विल नॉट proportionally reflect the change in terms of indications. So it will give you improper value. Therefore, for lower voltage, a graphical treatment may have to be used if you want to use it at all. Okay, तो इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमको वोल्टेज डिटरमाइन करना है तो लोअर वोल्टेज में दिस इज़ नॉट ए suitable device because it gives a non-linear characteristics. Okay, but if we are operating in higher voltage, then the condition is relatively better. So for higher voltage you can take it as a preference or as a competent device, but for low voltage it has certain issues. Okay, and frequency में आपने देखा कि audio frequency के लिए it is suitable, but for radio frequency it has issues. Other type of voltmeter is peak reading diode vacuum type voltmeter. इसके भी there are four types or four types of common arrangement. The one is the series type, one is shunt type, another is compensated shunt type, and the last category is slide back type. So there are four types for the peak reading diode vacuum arrangement, and most common among them is the vacuum tube arrangements which are used as a vacuum tube voltmeter. तो ये peak reading diode vacuum tubes के भी there are various variants that you should know. इसका देख सकते हैं ग्राफिकल्स. दिस इज़ ए सर्किट रिप्रेजेंटेशन. ये एम्पलीफायर और मीटर के लिए जा रहा है. यहाँ पे PMMC मीटर लगाया हुआ है आपने. ये वैक्यूम ट्यूब है पीक रीडिंग डायोड वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर के लिए. तो ये वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर का ही पार्ट है. आप देख रहे हैं यहाँ इनपुट साइनोसॉइडल दिया हुआ है और यहाँ कैपेसिटेंस इसके पैरेलल के रेफरेंस में शोन है. सो इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर यूजिंग रेक्टिफायर, जहाँ रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया हुआ है. तो बेसिकली जो DC इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर हैं, तो अगर आप रेक्टिफायर अगर इस्तेमाल करें तो AC को आप ऑटोमेटिकली DC में यू मस्ट बी नोइंग फुल वेव और हाफ वेव rectifications. So this the DC electronic voltmeter, they may be used to measure AC voltages by first detecting the alternating voltage. Okay, and in some situation rectification takes place, but इसमें ये है कि rectification प्री कंडीशन में भी हो सकता है और एज ए पोस्ट फैक्टर भी हो सकता है. सो रेक्टिफिकेशन इन सम सिचुएशन इट टेक्स प्लेस बिफोर द एम्पलीफिकेशन. तो एम्पलीफिकेशन से पहले भी कर सकते हैं, एम्पलीफिकेशन के बाद, और दोनों कन्फिग्रेशन दे विल बी कंसिडर्ड एज ए डिस्टिंक्ट कैटेगरी. सो इन विच केस ए सिंपल डायोड सर्किट, जब आप बिफोर एम्पलीफिकेशन करते हैं तो आप केवल सिंपल डायोड सर्किट का इस्तेमाल करते हैं विच प्रिसीड्स द एम्पलीफायर एंड द मीटर, और वो मीटर और एम्पलीफायर दोनों से पहले इस्तेमाल होगा. ओके, सो दिस एम्पलीफायर बेसिकली आइडियली रिक्वायर्स ए जीरो ड्रिफ्ट कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन उसकी प्री कंडीशन है कि उसकी जो ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जीरो होनी चाहिए. ओके, दैट वी डिस्कस्ड इन द यूनिट 2 कि व्हाट इज़ जीरो ड्रिफ्ट कैरेक्टरिस्टिक, और उसका वोल्टेज गेन भी यूनिटी होना चाहिए. तो ये दो कंडीशंस ध्यान रखने वाली बात है जब आप इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर विद रेक्टिफायर इस्तेमाल कर रहे हैं, कि उसमें एक तो जीरो ड्रिफ्ट कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए और उसका वोल्टेज गेन जो है वो यूनिटी होना चाहिए. इफ़ यू वांट टू यूज़ फॉर एज ए DC और DC मीटर मूवमेंट होना चाहिए, वो विद एडिक्वेट सेंसिटिविटी होना चाहिए. दैट शुड बी विद एडिक्वेट सेंसिटिविटी. जो अनदर मेथड है उसमें रेक्टिफिकेशन टेक्स प्लेस आफ्टर द एम्पलीफिकेशन, सो यू कैन यूज़ बोथ कन्फिगरेशंस.
डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबल रिसोर्सेज और अरेंजमेंट। और यहाँ आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर विद रेक्टिफायर्स है, तो यहाँ दिस इज़ हाउ द डिवाइस लुक लाइक, दिस इज़ द अरेंजमेंट यू मस्ट हैव सीन। ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के रेफरेंस में यहाँ AC सोर्स आपने इनपुट पे दिया हुआ है, और यहाँ पे आउटपुट जो है वो ये कैपेसिटर के पैरेलल में एज ए आउटपुट टर्मिनल मिल रही है, जो आपके रिपल्स फैक्टर को कंट्रोल करता है। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर्स में आप देख रहे हैं सिंपल डायोड अरेंजमेंट ही दिया हुआ है। दे आर 4 डायोड्स विच आर अवेलेबल देयर, D1, D2, D3, D4। ओके, ये मैकेनिज्म यहाँ सर्किट में भी डिस्प्लेड है रेक्टिफायर की फॉर्म में। यू आर सीइंग डिफरेंट अरेंजमेंट, दिस इज लाइक दिस एंड सिमिलरली आउटपुट टर्मिनल्स आर टेकन फ्रॉम हियर, और कैपेसिटर इज देयर जिसके अक्रॉस आप इसको ले रहे हैं टू रिड्यूस द रिपल फैक्टर। ओके, देन इलेक्ट्रॉनिक्स वोल्टमीटर यूजिंग रेक्टिफायर्स में बेसिकली दिस मेथड यूज हाई ऑपरेशन लूप गेन। तो ये इसकी मदद से आपको हाई ऑपरेशन लूप गेन और नेगेटिव फीडबैक, लार्ज नेगेटिव फीडबैक का इस्तेमाल होना चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होता है दैट यू आर एबल टू ओवरकम द नॉन लीनियरिटी ऑफ द रेक्टिफायर डायोड्स। तो अगर रेक्टिफायर डायोड की नॉन लीनियरिटी को आपको रिड्यूस करना है, देन यू मस्ट टेक केयर ऑन हाई ओपन लूप गेन एंड यू मस्ट ऑल्सो ensure that the large negative feedback is there. Okay, alternating current voltmeter that uses the half wave or full wave rectification, या दोनों configuration आपके लिए available होते हैं. You can make a choice depending upon the objective. So in terms of the RMS value of waveform instead of an average value, तो यूजुअली ये जो है एवरेज रेस्पॉन्डिंग टाइप रहता है. ओके, बिसाइड दैट मैनी वेवफॉर्म्स इट कैन हैंडल, बट दीज मेथड्स आर बेसिकली सेटिस्फैक्ट्री एंड मच लेस एक्सपेंसिव देन द ट्रू RMS वोल्टमीटर. तो ट्रू RMS वोल्टमीटर के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर विद रेक्टिफायर सीम स्टैंड्स आउट एज ए बेटर चॉइस. ओके, नाउ अगर नॉन साइनोसॉइडल वेव फॉर्म्स है देन बेसिकली दैट कॉजेज द मीटर टू रीड हाई और लो. अगर नॉन साइनोसॉइडल है, सो डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्म फैक्टर, एंड फॉर्म फैक्टर यू नो, फॉर्म फैक्टर इज बेसिकली VRMS अपॉन V एवरेज. तो क्या फॉर्म फैक्टर है उस पर डिपेंडेंट होकर ये मीटर की रीडिंग हाई या लो होगी, इस पर भी इशू आते हैं. तो रेक्टिफायर टाइप में ध्यान रखना चाहिए कि आपने जो वेव फॉर्म यूज़ की है वो किस तरीके, इज इट साइनोसॉइडल, इट इज़ ए डिफरेंट फॉर्म्स, बिकॉज साइनोसॉइडल में फॉर्म फैक्टर इज़ 1.1 बट इन अदर केस द फॉर्म फैक्टर इज़ डिफरेंट. So one must be sensitive on that because that is the constraint. The main advantage of AC voltmeter is that using negative feedback, basically it helps you to reduce the response time. So that is also a very important factor that must be kept in mind. Now true RMS reading voltmeter is also another category which is competent to deal with the complex waveforms, the most that needs to be accurately measured. So that is one issue. Basically true RMS voltmeter जो है, this instrument indicates the RMS value of any waveform. So it can indicate the RMS value, root mean square value of any waveform, whether it is sawtooth, square wave or any other wave, using an RMS detector. तो इसमें RMS detector का इस्तेमाल करते हैं, and this respond directly to the heating value because it works on the principle of thermocouple. Because we know that जो इनपुट इसमें सिग्नल फीड किया जाता है एज टू द हीटिंग एलिमेंट, तो ऑटोमेटिकली जो रीडिंग होगी वो प्रोपोर्शनल होगी, वो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी. तो दैट इज़ वाई इट इंडिकेट्स द RMS वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी. सो ट्रू RMS वोल्टमीटर इट लुक्स लाइक दिस, यू कैन सी दिस पिक्चर हियर. ओके, एंड दिस इज़ ऑल्सो ट्रू RMS मीटर. This is how they look like. Two RMS voltmeter, they are also a junction of the two dissimilar metals. Thermocouple का concept है, which and thermocouple में क्या है, the contact potential is basically a function of the temperature of the junction. तो जितना जंक्शन का टेम्परेचर डिफरेंस है और जो भी वर्क फंक्शन है मेटल्स के, उसके प्रोपोर्शनल में ही आपका आउटपुट वोल्टेज होता है, एंड दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द पावर डिलीवर्ड टू द हीटिंग एलिमेंट्स. ओके, तो जो सिग्नल में तो वोल्टमीटर जो वोल्टेज मेजर करना है, तो वो वोल्टमीटर का आप कह सकते हैं कि सिग्नल अगर ज़्यादा है तो हीटर को जो पावर मिलेगी वो प्रोपोर्शनली हीटिंग एलिमेंट को ज़्यादा होगी और वो प्रोपोर्शनली रीड करेगा. ओके, और ये जो वोल्टेज है वो करंट की फॉर्म में उसको इनपुट सिग्नल की फॉर्म में मिलता है, तो I²R इफेक्ट. सो दैट गिव्स यू ट्रू RMS वैल्यू. डिफरेंशियल बेसिकली जो होता है ये भी एक बहुत एक्यूरेट मेथड है, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू
know the unknown voltage in a differential voltmeter technique by using differential voltmeter technique. तो differential voltmeter technique क्या है? Where the voltmeter is used to indicate the difference between the unknown voltage and the known voltage. तो ये difference के principle पे it works there. Okay, also it is similar to that of the potentiometer. तो आप कह सकते हैं difference के, तो इस वजह से इसका दूसरा नाम भी है a potentiometric voltmeter. So differential voltmeter is also known as a potentiometric voltmeter क्योंकि ये उसके प्रिंसिपल के सिमिलरिटी पे काम करता है. एंड आउटपुट टर्मिनल जो है वो ऑफ दे गिव्स यू बेसिकली वर्क्स ऑन द यू कैन से प्रिसीजन वोल्टेज डिवाइडर एंड इट इंडिकेट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू. सो बेसिकली नो अननोन वोल्टेज और नोन वोल्टेज के डिफरेंस पर ये वर्क करता है. दैट कंसेप्ट नीड्स टू बी रिमेंबर. So this is a differential voltmeter. You can see these diagrams how it really looks like. Vector voltmeter, that is a last category, an important category. Basically in this the amplitude of the signal at 2 points in a circuit is measured. So it measures the amplitude of a signal at 2 points in the circuit and simultaneously it also measures the phase difference. तो ये दोनों चीज़ें करता है, मैग्नीट्यूड को भी मेज़र करता है और फेज डिफरेंस बिटवीन किस के वोल्टेज वेव फॉर्म एंड दीज 2 पॉइंट्स. तो ये फेज़ का भी मेजरमेंट करता है और मैग्नीट्यूड का भी मेजरमेंट करता है, इसीलिए इसको वेक्टर वोल्टमीटर कहते हैं. एंड इट इज़ यूजफुल फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस. दैट इज़ हाउ. एंड इट बेसिकली वर्क्स, इट कैन बी यूज इन वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस बिकॉज इट गिव्स यू मैग्नीट्यूड एज वेल एज फेज एंगल. सो दैट इज़ very important method. However, it at times this method takes time, relatively more time. But इसकी जो यूनिक करेक्टरिस्टिक है कि इसमें इंसर्शन लॉसेस भी रहते हैं, कॉम्प्लेक्स इम्पिडेंस ऑफ मिक्सर पैरामीटर्स ऑफ ट्रांजिस्टर के भी इशू आते हैं, एस पैरामीटर्स ऑफ ट्रांजिस्टर के भी इशू हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे इसके डिस्टॉर्शन रहता है, एंड देन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स दैट यू नीड टू टेक केयर एंड बी कंसर्न. एम्पलीफायर गेन और फेज शिफ्ट के भी इशू को लेके पैरामीटर पे वन मस्ट बी क्लियर ऑन द वेक्टर वोल्टमीटर. फिल्टर ट्रांसफर फंक्शंस आल्सो इम्पैक्ट इट्स फंक्शनिंग एंड देन 2 पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर्स आल्सो नीड टू बी टेकन केयर ऑफ एज इट इन्फ्लुएंस वेक्टर वोल्टमीटर functioning. So vector voltmeter basically it looks like this. You can see the different representation. Here you are seeing the magnitude is there and this is the phase. Okay, ये symbol है vector voltmeter का, how it really looks like. Okay, this is also a representation of vector voltmeter. You are seeing here magnitude, okay, in dB, and then this is a phase in degree. This is vector voltmeter. Okay, so basically vector voltmeter it converts the two RF signals of the same fundamental frequency, let's say 1 megahertz to gigahertz, okay, to intermediate frequency signals. Okay, IF is intermediate frequency signal with 20 kilohertz fundamental frequency. That is a one example which is given there. So this is you can say कि इसका frequency range wide है, magnitude भी देता है आपको, phase angle भी देता है, comparison भी कर सकते हैं आप टेस्ट को और स्टैंडर्ड को. ओके, इसके अलावा करंट मेज़रमेंट भी हम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर. बिकॉज लेट्स से अगर डीसी करंट मेज़रमेंट करना है तो देन इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर्स दे आर फ्रीक्वेंटली कंस्ट्रक्टेड टू एक्ट एज ए मल्टीपर्पज़ इंस्ट्रूमेंट. तो इलेक्ट्रॉनिक जो वोल्टमीटर है वो मल्टीपर्पज़ से मतलब है कि वोल्टेज भी मेज़र कर सकते हैं और करंट भी, अगर आप उसमें कुछ माइनर करेक्शंस करते हैं, दे कैन बी यूज टू मेज़र करंट एज वेल एज वोल्टेज. एंड द अननोन करंट इज़ बेसिकली मेड टू फ्लो थ्रू ए नॉन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस. तो दैट इज़ ए सिंपल प्रिंसिपल कि अगर आप एक अननोन करंट को एक नॉन रेजिस्टेंस के थ्रू पास करेंगे तो यू कैन डेफिनेटली मेजर द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दैट एंड बाय दैट यू कैन मेजर द करंट. सिमिलरली अगर AC करंट मेजरमेंट की बात करनी है, AC करंट इज़ टू बी मेजर्ड एज ए रेक्टिफायर इज़ यूज टू चेंज द अल्टरनेटिंग करंट. तो आप उसमें क्या करेंगे, अल्टरनेटिव करंट को आप रेक्टिफायर की मदद से DC करंट में बदल देंगे और DC करंट को ऑटोमेटिकली आप मेज़र कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ ए वोल्टेज ड्रॉप. सो द अनदर मेथड बेसिकली जो AC करंट के मेज़रमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो देन दैट इज़ यूजिंग करंट प्रोब बेसिकली विच हेल्प्स द AC करंट टू बी मेजर्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द सर्किट. Okay, under the test. So the AC current probe basically क्या करता है, that really clips around the wire carrying the
current and in effect it makes the wire of 1 ton primary of a circuit. तो प्रोब से कनेक्ट किया तो वो प्राइमरी की तरह काम करने लगती है, जैसे प्राइमरी ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी टर्म है तो प्रोब प्राइमरी के की तरह एक्ट करने लगती है, जैसे कि सीटी में होता है कि सीटी हैज़ ए फेराइट कोर एंड द सेकेंडरी कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स. सो द वोल्टेज इंड्यूस इन द सेकेंडरी, प्रोब आपकी प्राइमरी बन गई एंड देन इन द सेकेंडरी वाइंडिंग इट इज़ एम्पलीफाइड, क्योंकि आपको मालूम है कि सेकेंडरी पे क्या है, वैल्यू बहुत रिड्यूस हो जाती है, तो उसको आप फर्दर एम्पलीफाई कर सकते हैं. और ये जो एम्पलीफायर आउटपुट आएगा जो सेकेंडरी पे था उसको आपने फर्दर एम्पलीफाई किया. इट कैन बी मेजर्ड बाय एनी सूटेबल एसी वोल्टमीटर. तो यानी कि पहले करंट प्रोब बना लिया, उसको सीटी का प्राइमरी बना दिया, सीटी की प्राइमरी से सेकेंडरी पे बहुत कम वैल्यू की करंट आ गई और उसको आपने क्या किया, एम्पलीफाई किया और एम्पलीफाई करने के बाद उसको वोल्टेज की फॉर्म में रीड कर लिया. सो मीनिंग देयर बाय इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर्स से आप वोल्टेज मेजरमेंट भी कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर से आप करंट मेजरमेंट भी कर सकते हैं, ओके, बाय पासिंग इट थ्रू ए नोन रेजिस्टेंस एंड देन एवेल्युएटिंग द वोल्टेज, और थ्रू use of CT principle, current transfer principle, and making your current probe or your probe of the device as the CT or CT primary. तो ये भी पॉसिबल है, यानी कि वोल्टमीटर न केवल वोल्टेज ही मेज़र करता है बल्कि करंट सिग्नल्स को भी वो मेज़र कर सकता है. दैट इज़ हाउ इट ऑल्सो वर्क्स एज ए मल्टीपर्पज़ इंस्ट्रूमेंट्स. सो वी विल keep continuing now in following discussion on the power, different types of power meter in the electronics, as well as energy, and then other measurements using CRO or so. So please do join in next lecture also. Thank you very much.